میں بہت شکر گزار ہوں چیف صاحب کا اور رانا وقار صاحب کا، ریحان بابر صاحب کا، نعیم بابر صاحب کا اور آصف صاحب کا جو تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے ساتھ چائے کا ایک کمٹمنٹ کی. ہم تھوڑا اپنے دوستوں کو بتانے میں لیٹ ہو گئے، اس وجہ سے آج دوست سارے آ نہیں سکے، بلکہ ہم سے ناراض ہیں کہ ہمیں ان ٹائم آپ لوگوں نے بتایا کہ. اور میں سمجھتا ہوں اس رجیم کے ہوتے ہوئے کچھ چھوٹے موٹے معاملات اور باتیں تو شاید رجیم میں چلتی ہی رہتی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی پرابلم کسی دوست کو نہیں آیا کہ ہمیں ان سے جا کے کوئی ریکویسٹ کرنی پڑے کہ جی ہمارا یہ معاملہ ہے. جو بھی معاملات تھے وہ فوراً اسی لمحے انہوں نے، بلکہ مجھے یاد ہے ایک ہمارے دوست بھی یہ جو 31/12 گزری ہے کارپوریٹ سیکٹر کی، وہ کہتے ہیں یہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی کارپوریٹ کسی بھی کمپنی. میں اور ورک صاحب گئے ہیں رانا وقار صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اسی وقت انہوں نے کہا جی جتنی ہے اسی وقت سب وہ جو ہے ایکسٹینشن. اور اسی طرح نعیم بابر صاحب سے ایک دو سی ایکسٹینشن جتنے بھی دوست تھے انہوں نے کہا جی فوری اسی وقت. مطلب ہماری جو ایکسٹینشن ہے وہ لاہور سے پہلے ہو گئی، ورنہ لاہور عموماً ہم سے اس کام میں ذرا آگے ہو گئے. مگر اس دفعہ میں سمجھتا ہوں یہ ان دوستوں نے اتنا جو ہے کمفرٹیبل انوائرمنٹ رکھا کہ کسی دوست کو کوئی بہت مشکل نہیں پیش آئی. اور میں شکر گزار ہوں چیف صاحب کا اور مسٹر صاحبان کا، وہ تشریف لائے. اور آصف رفیق صاحب نے جو چھوٹے موٹے معاملات تھے وہ خود ہی انہوں نے نیچے سے ہدایات دے کے، ایک دفعہ کوئی تھا معاملہ کو ریٹرن رسیو نہیں ہوئی، اس پہ بھی انہوں نے یہی کیا. انہوں نے کہا یہ آپ ابھی یہیں بیٹھے اور صرف نام بتائیں اور وہ بندہ جو ہے وہ بھی اس سے اسی وقت وہاں سے فارغ کر کے، اور خود انہوں نے سارا کنٹرول سنبھالا. جو معاملات تھے بڑے احسن طریقے سے. تو میں یہاں پہ تشریف لانے کا ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ جو ہم دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور معاملات کو ایسے وہ بھی چلائیں. تھینک یو. جی، جیسا کہ پریزیڈنٹ حسن عسکری صاحب نے فرمایا ہے کہ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. ہماری بات کے ممبران کی جو ریٹرن کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی تھی، اس کے جو مسائل تھے وہ آئی آر ایس کے تھے یا ایکسٹینشنز کے تھے یا مینول ایکسٹینشنز تھے، وہ ہمیشہ رہتے تھے. لیکن اس دفعہ چیف صاحب کی انسپیکشن پہ فوری طور پہ دوستوں کو ایکسٹینشن بھی لی ہیں، اور کچھ لوگوں کو 114 کے نوٹس ہوئے تھے تو وہ بھی انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم انسپیکشن دی کہ جتنے بھی 114 کے نوٹس ہیں جب تک ایکسٹینشن کی ڈیو ڈیٹ چل رہی ہے وہ فوری طور پہ وتڈرا کر لیے جائیں. تو وہ بھی فوری طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. باقی تمام دوستوں کے جتنے بھی تھے فرداً بھی اس مسئلے کے لیے ہم گئے ہیں. تو جیسے صدر صاحب نے کہا کہ کافی سارے مسائل میں ڈیفینیٹلی جو ایک ادارے کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی انسٹرکشن نیچے تک جاتی ہیں. تو کافی سارے معاملات میں ہمیں چیف صاحب سے پہلے ہیڈ کوارٹر سے آصف رفیق صاحب سے معاملات سیٹل ہو جاتے تھے. تو ہم ان سارے معاملات میں ہم اپنے پورے سال میں ہم ان دوستوں کے مشکور ہیں. اور میں گزارش کروں گا چیف کمشنر محمود حسین جعفری صاحب سے کہ وہ دوستوں سے اپنے تاثرات شیئر کریں. حسن عسکری صاحب اور معزز ممبران فیصلہ باد کے اخبار، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا حسن عسکری صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو. ان کی جو کیبنٹ ہے مجھے بتایا گیا کہ اب ہماری جو نئی کیبنٹ ہے ادھر انشاءاللہ وہ چارج دے گی. تو مبارک آپ کو بہت. اور اپنے بڑا اچھا اور بڑا مثالی تعلقات رہے ہیں ہمارے ہمیشہ، جو مجھے پتہ لگا ٹیکس بار کے ساتھ. اور جو لاسٹ ایک ساتھ جو میں نے دیکھا تقریباً ایک ساتھ، تو ماشاءاللہ بہت اچھا اسموتھلی کام چلا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کی نیکسٹ کیبنٹ آئے گی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی. ایک اور چیز جو میں بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک کے بعد دوسری کیبنٹ آپ کی آتی ہے اور سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، جو کہ بہت ہی اچھی پازیٹیو چیز ہے. دوسرا میں ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی، جو بھی ہماری جو نئی کیبنٹ آتی ہے، لیکن پی او ایس سے ریلیٹڈ اور بی ٹی بی سے ریلیٹڈ کام، کیونکہ بورڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی پرائرٹی ہے بورڈ کی. تو ہم تو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس میں کوئی سیمینار اور پبلک اویئرنیس کا جو بھی پروگرام ہے
इसको ज़रूर लॉन्च करें, क्योंकि आपकी तरफ से जब बात जाएगी तो उसकी शायद मेरे ख्याल है असर हमसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग आपकी बात को ज़्यादा वेटेज देते हैं, हमें तो फिर वो एहतियात समझेंगे। जब आप उनको समझाएंगे तो हालात बहुत बेहतर होंगे। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जी इसमें यूएस से रिलेटेड भी फैसलाबाद में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, और लाइक वाइज बीटीबी और रेवेन्यू के लिहाज से भी चीज़ें बड़ी अच्छी स्मूथली जा रही हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह इसी तरीके से जो आपकी नई कैबिनेट होगी, हम एक दूसरे के साथ इसी कोलैबोरेशन के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करें इंशाल्लाह। जी, जैसा कि चीफ साहब ने फरमाया है कि पीओएस के बारे में और बीटीपी के बारे में भी हमारे बात के दोस्त ताउन करें, तो इसमें कुछ दोस्तों की आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी, इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं सर के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो इनके करने वाली हैं। जैसा कि इस सप्लीमेंट्री बिल में जो कार्टिंग इंडस्ट्री का थ्रेशोल्ड था उसको भी डाउन कर दिया गया है, 10 मिलियन से 1 मिलियन कर दिया गया है। सर, जितने भी दोस्त हमारे क्लाइंट पीओएस में हम उनको फोर्स करते हैं, वो कहते हैं हमें इनपुट नहीं मिलता, हमारी जो पीछे सप्लाई चेन है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम एडवांस ऑन द ऑल से हमारे लिए आउटपुट देना मुश्किल है। और उसमें फिर कुछ लोग अभी लोगों के सामने में अवॉइड भी करते हैं, पीओएस हो भी जाता है तो उसको फिर इन्वेस्टिंग को अवॉइड करते हैं। तो सर, इसमें जो पीछे सप्लाई चेन है, अगर उसके ऊपर फोर्स को थोड़ा सा एक्टिव किया जाए और थ्रेशोल्ड भी अब कम हो गया है, तो वो जो पीओएस इंटीग्रेटेड पीपल्स हैं उनको जो इनपुट आएगा रजिस्टर्ड, तो फिर उनके आउटपुट का बर्डन उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो अपना जो शेयर है वैल्यू एडिशन का उसके ऊपर वो ड्यू टैक्स देंगे, तो उनका जो बर्डन वो कम हो जाएगा। बाकी बीटीपी के बारे में माशाल्लाह महकमा पहले भी एक्टिव है, एक्साइज की डॉक्यूमेंटेशन है, बैंक्स की डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर नोटिस आ रहे हैं और हम दोस्त प्रॉपरली उसको आपके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं इमरान से गुजारिश करूँगा अगर किसी की कोई क्वेश्चन कोई सजेशन है तो वो सर को अपनी पेश करें। सर ऐसे है कि कुछ मैं तो ज़्यादा कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो कॉर्पोरेट में सर कुछ हमारे ऑडिट पेंडिंग है, 2017 का ऑडिट पेंडिंग है। एट द सेम टाइम 161/205 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसमें ज़ाहिर है जब हम ऑर्डर में आते हैं तो वहाँ भी हमें डिसअनाउंस होना है, कोई ना कोई वो किसी और ऑफिसर के पास है, 161 किसी और ऑफिसर के पास है। तो या तो एक प्रोसीडिंग होल्ड करके एक प्रोसीडिंग पहले कंप्लीट हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल है, ठीक है, लेकिन वो एक डुप्लीकेट जो है वो फैक्ट चला जाएगा किसी भी क्लाइंट के ऊपर जो होगा कि उसका ऑडिट के भी डिसअनाउंस हो रहा है ड्यू टू नॉन रिडक्शन ऑफ टैक्स, और उसको 161/205 भी उसका वो चार्ज हो रहा है ड्यू टू नॉन रिडक्शन ऑफ टैक्स। तो ये हम्बल क्लीन होगी कि एक्शन जो है वो आपकी तरफ से हम उसी को लिस्ट दे देंगे जहाँ पे एक एक्शन जो है वो अप्लाई कर दिया जाए। दिस इज नंबर 1। सेकंड सर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं तो ये समझता हूँ कि अब 2014 या 2015 161/205 नहीं होना चाहिए, तो उसका अगर नोटिस इशू हो रहा है तो हम लिख के दे रहे हैं कि टाइम बार्ड है, तो बजाय ये कि वो वन साइड फैसला हो जाए और चार्ज कर दिया जाए 161, तो डेट शुड बी ड्रॉप्ड। तो वो ज़रा रेहान सफदर साहब से मैं कहूँगा। नहीं, मैं रिस्पॉन्ड दोनों को कर देता हूँ। थैंक यू। लेकिन पहला जो ठीक है मेरी आवाज़ आती, लेकिन पहला जो इशू है ना जिसमें वो आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि उसके ऊपर पॉलिसी कोई नहीं है आरटीओ की, और कई आरटीओ में कोई पॉलिसी नहीं है, वो लाहौर में एलटीयू के अलावा शायद कहीं पर भी ऐसी नहीं कि एट अ टाइम अगर आपका ऑडिट चल रहा है और उसके अंदर 21 को अगर इन्वोक किया जा रहा है और उसके बाद 161 भी हो रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब पहले कौन सा होता है कौन सा नहीं, दोनों की इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब इशू ये है कि आपको जो सूट करता है, जो मैं ये कमिश्नर विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से नहीं बात कर रहा, अदरवाइज बात कर रहा हूँ जनरली, आपको सूट करता है कि आप 161 पहले करवा लें ताकि 21 के परव्यू से निकल जाए कि ऑलरेडी चार्ज होगी और जो डिमांड बनती है आप उसमें जमा करा दें, तो 21 का जो डिसअलाउंस होना है वो तो बहुत हाई रेट के ऊपर जाके टैक्स होना है, और यहाँ पर जो आपको टैक्स लगना है, टैक्स टाइल है तो 1% लग जाना है मैक्सिमम, या कितना लग जाना है 3-4%, 5% पे चले जाएंगे। तो वो उसके ऊपर पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी चीफ साहब से डिस्कस कर लेंगे कि क्या बन भी सकती है कि नहीं बन सकती।
क्योंकि अगर ये दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं तो एक होल्ड करे, दूसरा उसको 4 साल लेकर बैठा रहे, तो वो हमारी पेंडेंसी बढ़ती रहेगी, या हम उसको पेंडिंग करते जाएं, और ये इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। ये हम आपस में इंटरनली हम देख लेंगे इसको, आपकी जो सजेशन हो दे दें। जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है कि जी टाइम लिमिटेशन के हवाले से, कानून के अंदर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, रिकॉर्ड के वाले तो है, रिकॉर्ड के हवाले से एक सेकंड ये इशू बड़ा थ्रेड पे सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, फिर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी अपनी जजमेंट दी है, उन्होंने भी इसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। ये जजमेंट भी, अगर आपके पास कोई जजमेंट कोई है तो वो दे दें। उन्होंने उसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जी सब कुछ डिपार्टमेंट के वो देख ले कि जी रिकॉर्ड की लिमिटेशन 5 साल की है, और उसके बाद ये जो कर रहे हैं 161 ये उसमें है। अब ये थोड़ा सा रिकॉर्ड के हवाले से भी मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है इसमें कि ये ऑडिट पर्पजेज के लिए रिकॉर्ड की हद तक तो ठीक है, ये अब ऑडिट तो है नहीं जिसको 161 को हम ऑडिट कह रहे होते हैं, दिस इज सिंपल मॉनिटरिंग। और अगर वो साल गुजर चुका हुआ है और वो सारा 161(1)(b) भी अवेलेबल है तो डिफॉल्ट चार्ज की हद तक ही आप लोग जाते हैं। लिमिटेशन के ऊपर तो हमारा क्लियर स्टैंड है, और मेरा ख्याल है शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर ही है, और ये हम कई दफ़ा कर भी चुके हुए हैं कि हम इसके ऊपर लिमिटेशन को नहीं मानते क्योंकि कोई फैसला नहीं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मैंने 5 साल से ये इंस्ट्रक्शन दी हुई कि पुराने में किसी में नहीं जाना हमने, ठीक है, जस्ट टू फैसिलिटेट। अगर हमने उस वक्त नहीं किया तो ये हमारा फॉल्ट है, हमें वक्त के ऊपर कर लेना चाहिए था, वो कि लॉ में रोकता नहीं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारी मजबूरी है, वो केसेस हैं जिनके अंदर ऑडिट पैरास पेंडिंग चलते आ रहे हैं, कुछ हैं क्योंकि उसके अंदर हम ये लिमिटेशन और ये किसी चीज़ को आर्ग्यू नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी हद तक हमारी पॉलिसी है। अगर आपका कोई केस ऐसा है जो पुराना है, हम उसको क्लोज कर देंगे, जो भी एक एमिकेबल कोई सोल्यूशन होगा, लेकिन इस पॉइंट को नहीं हम मानेंगे कि वो टाइम बार्ड हो चुका हुआ है और हम इसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इशू ये बड़े कोर्ट्स में भी हुआ है डिस्कस, और ये सेटल नहीं हुआ, और हम इसको अलहदा भी डिस्कस कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ द जजमेंट। लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आपको भी पता है। चलो स्पेसिफिक केस है कि आपके पास हाँ, मेरे पास आ जाइएगा, उसको देख लें। मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, रेहान साहब ने बड़ा तफसील से जवाब दिया और बिल्कुल सही दिया। तो एक छोटी सी चीज़ मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो ऑडिट है ना, जो 177 या 2146 5% भी नहीं होता, जबकि मॉनिटरिंग 100% होगी। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि, और उस 21 में भी ये प्रोविजन है कि अगर उस पर टैक्स पे हो जाए तो फिर उसके प्रोविजन से निकल जाता है। तो रेहान साहब ने बहुत अच्छा सजेशन दिए कि आप पहले 100% 161 करवा लें, और क्योंकि ऑडिट जो दूसरा ऑडिट है वो तो 5% से भी कम है, तो ताकि जब आप 177 में जाएं तो आप इधर से क्लियर हो कि कम अज़ कम हमें 21C से हम पार हो गए। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी जस्ट मैंने ऐड करना है तड़का डिलीवरी का जी। 161 की जो है वो लिमिटेशन नहीं है, मुजीबुल्लाह सिद्दीकी साहब की एक जजमेंट है, उन्होंने कहा था जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ 156 था उस वक्त, तो 221 साहब आ गया, उस वक्त 156 था, उन्होंने कहा जी वो एप्लीकेबल होगा, यानी जो अगर लिमिटेशन इसी वाले से भी होल्डिंग के वाले से है, उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि हम मानते हैं कि इसकी लिमिटेशन लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन 156 की लिमिटेशन है 5 साल की, तो जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ वो 156 की एप्लीकेशन जो है ना वो होगी, लिमिटेशन उससे ऊपर नहीं जा सकती। ये उस पर जजमेंट है उसकी, अपना मुजीबुल्लाह सिद्दीकी साहब की जनाब, उसकी जजमेंट दे देते हैं हम, दे देंगे जी। सेकंड क्वेश्चन सर, जस्ट कॉर्पोरेट टर्म्स हमने फाइल की हैं एंड वेरी 2 to 3 डेज वो 161 के नोटिस आ गए हैं। मैं नहीं कहता कि इलीगल है, लीगल है, लेटेस्ट फाइल जो जी जस्ट फाइल्ड है और 2 जैन को हमें 161 का नोटिस आ गया है। अब सेम क्लाइंट का भी 2017 या 2018 161 पेंडिंग पड़ा है। अब वो जब क्लाइंट से ज़ाहिर है टैक्स पेयर हैं, मैं कतई नहीं कह रहा जस्टिफाइड है, लेकिन वो ज़ाहिर है मैं कहता हूँ कि वो तरतीब हो जाए कि पहले उसकी पिछला केस क्लोज हो जाए। 21 की अभी आपके पास 5 ईयर्स पड़े हैं, तो अगर वो एक कुछ 6 माह ठहर के भी हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि अगर पिछले पेंडिंग 80 क्लाइंट के पड़े हैं। देखिए मेरे क्लाइंट के 4 नोटिस हैं, 70 भी 161 है, 18 भी है, 19 भी है, ऊपर से 21 का नोटिस भी आ गया है। तो इतनी कंप्लाइंस जो है तो हमारे लिए बड़ी, स्पेशली कॉर्पोरेट केस में हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। नहीं, एक सेकंड, इसके ऊपर ये लीगली तो आपने खुद ही पहले एडमिट कर लिया कि इसके ऊपर बात ठीक हो गया। अब देखिए हमारी भी कोई थोड़ी सी ऊपर कोई पूछताछ हो रही होती है, ठीक है, उसके अंदर एक ये भी होता है कि जो खास तौर पे ये वो केसेस हमने निकाले हुए हैं जिनके अंदर कोई ना कोई डिफॉल्ट हमें नजर आए, सारों के नहीं गए हैं, ये आपके कुछ केसेस में आए होंगे, सारों का तो भी मैंने डाटा हमने लिया भी नहीं है क्योंकि वो जब कॉम्प्रिहेंसिव होगा। एक तो ये कि
اس کے اندر 221 کا جو اپنا کہنا چاہ رہے ہیں 2021 کا اگر آپ نہیں کروانا چاہتے پچھلا ہی آپ کی چوائس ہے. نوٹس آپ کو ایشو رول 44 کا ہوا ہوگا, 161 کا نہیں ابھی ایشو ہوا, 44 کا ایشو ہوا. دیٹ از سمپل ریکنسیلیشن. ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو نوٹس نہیں کہہ سکتے ان دا سینس کہ ڈیفالٹ تو بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے صرف کہ آپ اس کو ریکنسائل کرتے ہیں. اگر آپ کو 161 ایشو ہو تو آپ کا یہ پوائنٹ پھر کسی حد تک کوئی ویٹیج رکھتا ہے کہ جی 161 فوری طور کے اوپر ہمیں ایشو کر دیا گیا ہے. رول 44 کے نوٹسز ہمارا ود ہولڈنگ زون کی پالیسی یہی ہے کہ ہم جو ایک ڈیٹا اپنا بناتے ہیں اس کے اندر جو ڈیفالٹ آتے ہیں سب کو رول 44 کا نوٹس ضرور دیں. ٹھیک ہے, اب رول اس کے اندر بھی آپ کے پاس چوائس ہے. اگر آپ اس کی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں جتنی مرضی آپ لے لیں, آپ 64 سال کرانا چاہتے ہیں فیسیلیٹیٹ وہ کر دیں گے, لیکن اس کے اوپر میں آپ کا رجسٹر نہیں کروں گا کہ جی نوٹس بھی ایشو نہ ہو, کیونکہ رول 44 کی حد تک آپ اس کے اندر یہ سمپل ریکنسیلیشن کا نوٹس. ادروائز کیونکہ آپ سے میری انٹریکشن پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے, اب ود ہولڈنگ زون میں کچھ تھوڑی سی ہمارے کوئی نارمز جو ہے نا اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ایکس پارٹی آرڈر نہ ہو کوئی, جبکہ 90% ایکس پارٹی آرڈر ہو رہے ہیں. وکیل کمپلائنس ہی نہیں کرتے, اور اس کی نہیں آپ کرتے ہوں گے, میں آپ کو پورے زون کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کمپلائنس کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایون جتنی کنسیشن بھی جو ہے, یہ پہلے اگر آپ یہاں پہ تھے تو کرامہ صاحب نے بھی یہ فورم پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ جی ہماری کوشش ہے کہ جو بھی ٹیکس ہو وہ پے ہو جائے. بہت سے پے بھی کر رہے ہیں لیکن 90% ہمارے ایکس پارٹی آرڈر ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کوشچن باہر سے میرا آپ سے نہیں ہے, میرا باہر سے کوشچن ہے نا. ہماری ریشو آپ دیکھ لیں وہ سارے کے سارے, اب کمشنر اپیل نے, اب یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, انہوں نے اب کچھ کنفرم کرنے شروع کر دی ایکس پارٹی, ورنہ سارے سیٹسفائڈ ہو رہے تھے. مطلب کہ وہ ہمارے لیے بھی ڈبل برڈن ہے کہ